کہتے ہیں بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک فوجی کئی مہینوں کی چھٹی کے بعد واپس گھر کو جا رہا تھا۔ راستے میں وہ ایک جگہ درخت کے نیچے تھوڑا سا سستانے کے لیے رکا۔ جیسے ہی اس نے گھوڑے کو باندھا، درخت کے نیچے اس کے سامنے ایک سنہرے رنگ کا پنکھ پڑا ہوا تھا جو کسی پرندے کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کا رنگ سونے کی طرح تھا۔ اس نے وہ پنکھ جا کے اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے وہ پنکھ اٹھایا، آواز آئی کہ اسے مت اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے درخت کے اوپر دیکھا تو وہاں پہ ایک مینا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ انسانوں کی طرح بول رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے مینا سے پوچھا کہ تم بھی انسانوں کی طرح بول رہتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں انسانوں کی طرح ہی بات کرتی ہوں۔ میں تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پنکھ مت اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اس نے کہا، وہ کیسے؟ تو وہ مینا بولی، اس کو اٹھاؤ گے تو ہی پتہ چل جائے گا۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہی ہوں۔ یہ بات کرتے ہوئے مینا پرندے سے اڑی اور سپاہی کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا اس جہاں میں کوئی بھی نہیں ہے، میں ادھر ادھر اڑتی رہتی ہوں۔ سپاہی نے کہا، یہ پنکھ بھی میں ضرور اٹھاؤں گا اور تمہیں بھی میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ بات کہہ کر سپاہی نے وہ پنکھ اٹھا کے اپنے بیگ میں ڈال لیا اور مینا کو اپنے کندھے پر بٹھا کر گھوڑے پہ چڑھ کے روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے گھر جا پہنچا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اس پنکھ کے بارے میں بتایا۔ گھر والوں نے اس کا جب وہ پنکھ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح کا پہلے کوئی پنکھ نہیں دیکھا تھا۔ گھر والوں نے مشورہ دیا کہ تم اسے اپنے پاس مت رکھو، تم جا کر اسے بادشاہ کو دے آؤ، وہ بہت خوش ہوگا۔ سپاہی کو گھر والوں کی یہ بات اچھی لگی۔ اس نے وہ پنکھ اٹھایا، مینا کو کندھے پہ بٹھایا اور بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ کو وہ پنکھ دیا۔ بادشاہ اس پنکھ کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے زندگی میں پہلے کبھی اس طرح کا کوئی پنکھ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سپاہی کو انعام دیا اور ساتھ ہی کہا کہ جس پرندے کا یہ پنکھ ہے، تم وہ پرندہ مجھے پکڑ کر لا دو، اس کے بدلے میں تمہیں مال و زر سے نوازوں گا۔ اگر نہ لے آئے تو میں تمہاری گردن سر سے قلم کر دوں گا۔ بادشاہ کا یہ حکم نامہ سن کر سپاہی بہت حیران ہوا اور پریشان بھی۔ تو مینا بولی، پریشان مت ہوئیے، جس کا یہ پنکھ ہے وہ پرندہ جنگل میں آتا ہے جھیل پہ پانی پینے کے لیے، تو ہم وہ بے ہوشی والی دوا لے جا کر اس پانی میں ملا دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پانی پیے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا اور تم اسے آسانی سے پکڑ سکو گے۔ مینا کا یہ مشورہ سپاہی کو بہت پسند آیا۔ سپاہی مینا کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر کرتے ہوئے مینا نے سپاہی کو جنگل کی نشاندہی کی۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد اس نے اس جھیل کی بھی نشاندہی کی
जहाँ पे वो परिंदा पानी पीने के लिए आता था। अब परिंदे का इंतजार था। जैसे ही परिंदा आया, उन्होंने पानी में वो बेहोशी वाली दवा मिला दी। उसने पानी पिया और वो बेहोश हो गया। उन्होंने उसे पकड़ा, बैग में डाला और घर को रवाना हुए। बादशाह के दरबार में पहुंचकर उसने वो परिंदा पेश किया। बादशाह ने कहा, ये तो सुनहरे रंग का है, जबकि पंख सोने के रंग का है। तो उन्होंने कहा, इसका पंख तोड़ के रख लीजिए, 2 से 3 मिनट में ये पंख गोल्डन कलर का हो जाएगा, मतलब सोने के रंग का। तो बादशाह ने वो पंख आराम से निकाला और रख दिया। 2 मिनट के बाद वो उसका रंग गोल्डन हो गया। अब बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने सिपाही को काफी माल और ज़र देकर रवाना कर दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह ने उस सिपाही को दोबारा बुलवाया। कहा, तुम हमारे मतलब के आदमी लगते हो, मैं तुम्हारे जिम्मे एक काम लगाता हूँ। मेरी सारी जिंदगी ये ख्वाहिश रही है कि मैं किसी जल परी से शादी करूं, लेकिन कोई भी मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। बादशाह ने उसे कहा कि तुम समंदर में जाओ और मेरे लिए समंदर की सबसे खूबसूरत तरीन जल परी लेकर आओ, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। बादशाह का नया हुक्मनामा सुनकर सिपाही फिर से परेशान हुआ और उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। तो मीना बोली, घबराइए मत, आप बादशाह से कहिए कि वो आपको बहुत ही खूबसूरत खैमा और बेहतरीन और लजीज खाने बना कर दे, हम बादशाह का ये काम कर देंगे। तो उसने बादशाह से खाना और खैमे मांगे, जो बादशाह ने फौरन से दे दिए। अब मीना सिपाही को लेकर समंदर के किनारे पहुंच गई, खैमा लगवाया और उसको कहा कि यहाँ बैठ के इंतज़ार करो, जैसे ही वो जल परियां आएंगी उन्हें तुम खाने की ऑफर करना। जब वो खाना खाने लगेंगी तो चुपके से शरबत में बेहोशी वाली दवा मिला देना। वो खाते ही बेहोश हो जाएंगी, तुम बादशाह के पास लेके आ जाना। बिल्कुल इसी तरह हुआ। रात के आखिरी पहर में जल परियां सतह समंदर पर आ गईं। जो जल परियों की शहजादी थी, उसने अपनी सहेलियों से मुकाबला करने का कहा कि हम तैराकी में मुकाबला करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा तेज़ है। उन्होंने कहा, ठीक है। वो सतह समंदर पर तैरने लगी और पॉइंट हुआ कि उस साहिल तक कौन पहले पहुंचेगा। मुकाबला शुरू हुआ तो जलपरियों की शहजादी ने तेजी से तैरना शुरू कर दिया, जबकि उसकी सहेलियां जानबूझकर आहिस्ता से तैर रही थीं। जल्द ही वो अपने मंजिल तक जा पहुंची। जब उसने मंजिल पर पहुंची तो उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत खैमा है। उससे बड़ा तजस्सुस हुआ। वो आगे बढ़ गई, जाकर देखा तो अंदर एक सिपाही बैठा हुआ था। उसने पूछा, कौन हो तुम? तो उसने कहा, मैं इंसान हूँ, खाना खाना है आपने? तो जलपरी ने कहा, जलपरी क्योंकि पहले से तजस्सुस में थी। तो उसने कहा, हाँ, उसको ये देखना था कि इंसानों का खाना होता कैसे है। वो जाके सिपाही के साथ खाने में मशगूल हो गई। खाना खाते ही उसको ये महसूस हुआ कि ये खाना तो बहुत लजीज है। खाना खाने के बाद शहजादे ने शरबत का गिलास पेश किया और उसी में वो बेहोशी की दवा भी थी। जलपरी वो पानी पीने के बाद बेहोश हो गई। शहजादे ने जल्दी से खैमा समेटा, घोड़े पे लौट किया और शहजादी को घोड़े पे सवार करके रवाना हो गया। बादशाह के दरबार में पहुंचकर उसने जलपरी को बादशाह के दरबार में रख दिया। जलपरी को होश आने तक बादशाह सलामत ने उसका इंतज़ार किया। जलपरी को जैसे ही कुछ टाइम गुजरा, उसका जो निचला धड़ था वो खुश्क होने के बाद गिर गया और वहाँ से टांगें बनना शुरू हो गईं। तो जल्दी जल्दी कनीज़ों ने उसे कपड़े पहना दिए।
जब जलपरी को होश आया तो बादशाह ने उससे शादी की ख्वाहिश की। जलपरी ने कहा, मेरा एक बैग है जो सतह समंदर में है, जो गर्क होने वाले जहाज़ों से वो सोना जमा करती थी, वो उसी में है। उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो जब भी शादी करेगी वो जेवरात वही पहनेगी। अब अगर कोई वो जेवरात ला कर देगा तो तब वो आपसे शादी कर लेगी। जलपरी की ये ख्वाहिश सुनकर बादशाह ने फौरन से सिपाही को तलब किया और कहा कि इसका जाके सामान ले आओ। सिपाही, जो एक के बाद दिगरे बादशाहों के हुक्म से खासा परेशान था, एक मरतबा फिर परेशान हो गया और सैरे समंदर पर जाकर खैमा लगाकर फिर बैठ गया। शहजादी की सहेलियां रोजाना सत्ता समंदर पर आकर शहजादी की तलाश करती थीं। वो बहुत परेशान थी कि शहजादी आखिर कहाँ गई। इसी तगदो में उन्होंने देखा कि साहिल पर एक खैमा लगा हुआ है। वो खैमे की तरफ बढ़ी और झांक कर देखने लगी तो सिपाही ने कहा, आप शहजादी को तलाश कर रही हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम उन्हीं को ढूंढ रही हैं। तो सिपाही ने कहा कि आपकी शहजादी हमारे बादशाह से शादी कर रही है। उसने मुझे यहाँ पर भेजा है कि आप लोगों से उसका वो संदूक लेके जाऊं जिसमें उसने अपने जेवरात रखे हुए हैं। तो सिपाही की ये बात सुनकर उसकी सहेलियां बहुत खुश हुईं और उसका वो संदूक लाकर उन्होंने सिपाही के हवाले कर दिया। सिपाही वो संदूक लेकर बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह अब बहुत खुश था कि अब उसने जलपरी की तमाम ख्वाहिशात पूरी कर दी हैं, लिहाजा अब वो उससे शादी कर लेगी। लेकिन ये उसकी खाम ख्याली थी। जलपरी ने बादशाह से कहा कि एक आग का अलाव बनाया जाए और उस जलते अलाव में इस सिपाही को डाल दिया जाए। अगर उसकी ये ख्वाहिश वो पूरी करेगा तो वो उससे शादी कर लेगी। बादशाह ने जल्दी से अलाव का इंतज़ाम करवाया। अलाव जब तैयार हो गया तो जलती हुई आग में सिपाही को डालने का हुक्म दिया। बादशाह सिपाही बहुत परेशान था, उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी थी। तो मीना बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये पंख तुम्हें मुसीबत में फंसा देगा। अब भी परेशान न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मीना ने उसे जल्दी जल्दी इसमें आज़म याद करवाया। सिपाहियों ने पकड़कर जब सिपाही को अंदर अलाव में डाला तो उसने इसमें आज़म पढ़ना शुरू कर दिया। आधा घंटे के बाद हर कोई इंतज़ार में था, अभी उसकी चीखें बुलंद होंगी, अभी उसकी चीखें बुलंद होंगी। लेकिन आधा घंटा गुजरने के बाद जब सिपाही वापस सही सलामत बाहर आग से निकला तो हर कोई बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल खैरियत व आफियत से वापस आया था, बल्कि वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। बादशाह ने जब उसका रंग और उसकी जिस्मानी कुव्वत देखी तो फ़ौरन ही आग में छलांग लगा दी और वो उसमें जलकर राख हो गया। बाद तमाम लोगों ने जो उस वक्त के सरदार वहाँ मौजूद थे, उन्होंने सिपाही की ताकत और जज्बे की वजह से सिपाही को बादशाह मुकर्रर किया। बादशाह मुकर्रर होने के बाद सिपाही बादशाह ने जलपरी को कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस भिजवाने के इंतज़ामात कर सकता हूँ। जलपरी अंदर से बहुत शर्मिंदा हुई थी, क्योंकि उसने उसे मरने का प्लान बना लिया था, लेकिन बचाने वाली रब की ज़ात थी। वो बहुत शर्मिंदा थी। उसने कहा वो उससे शादी करना चाहती है और वापस नहीं जाना चाहती। तो सिपाही बादशाह ने कहा, अगर वो उससे शादी करना चाहती है और वापस नहीं जाना चाहती तो उसकी भी यही ख्वाहिश है। इस तरह वो दोनों शादी करके हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी मुसीबत को वो मोल नहीं लेना चाहिए। अगर ले भी लें तो फिर सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अगली कहानी तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।